اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ سب لوگوں کو عربی زبان کی اس کلاس میں خوش آمدید۔ آج 3-4 چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہیں، اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ باقاعدہ کوئی گرامر یا تجوید یا تفسیر کی کلاس نہیں ہے، بلکہ اس کلاس کا ایک مقصد ہے، اور اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ریسورسز میں دوں کہ کیا کیا آج کل انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، کیا کیا کتابیں اویلیبل ہیں۔ ہم بلکہ گروپ میں ڈال بھی دیتے ہیں، شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ڈالتے رہتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں مصحف مختلف طریقوں کے ہیں، اور ہمارے انڈو پاک میں ایک مصحف ہے جو ایک ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسکرپٹ میں ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں ایک مصحف ہے جو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسکرپٹ میں ہے۔ دونوں مصحف کو اسی طرح سے ایک ٹرکش مصحف ہے جو ایک تیسرے اسکرپٹ میں ہے۔ تو یہ جو مصحف ہیں یہ سارے ان کی تھوڑی سی نالج ہو آپ کو، ویب سائٹ کیسے ایکسیس کریں آپ، اس کی آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو ابھی اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ بیسیکلی صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے اعراب اور حرکات۔ اعراب اور حرکات۔ تو کسی کو معلوم ہے کہ حرکات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف حرکات؟ کسی بھی لفظ پر جو فارمیشن میں وہ جو حرکتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کو ہم دمہ، کسرہ اور رفع کہتے ہیں، یعنی زیر زبر پیش، وہ حرکات ہوتی ہیں۔ جی، شاباش، دس از دا حرکات۔ میں اب ایسا کرتا ہوں کہ ہم آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کو میں نے ایک مصحف شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو مصحف ہے یہ ترکی کی آیا صوفیہ جو ماسک ہے اس میں، اور جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ وہاں پہ یہ پڑھا جاتا ہے مصحف، اور اٹس اے ویری ویری نائس مصحف انڈیڈ۔ تو اس کے اندر آپ کو کچھ شاید فرق یا کچھ چیزیں شاید آپ کو نہیں آئے۔ اب میں سمجھ میں، مثال کے طور پہ اس میں آپ حرکات دیکھ سکتی ہیں۔ کوئی آدمی مجھے بتائے گا کہ اس کے اندر پہلی آیت بسم اللہ سے شروع کریں اور پڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ کلاس انٹریکٹیو ہو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ کی نالج جو ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹرکش مصحف سے آج۔ تو یہ آپ ذرا پڑھیے پہلی آیت جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ آپ کو شاید فرق نظر آیا ہوگا اس کے اسکرپٹ کے لکھنے میں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، عالمین کے نیچے جو ہے، شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو میں ذرا بتا رہا ہوں، عالمین کے نیچے کیا چیز لگی ہوئی ہے، اور الرحیم کے نیچے کیا چیز لگی ہوئی ہے، اور الدین، یوم الدین کے نیچے کیا چیز لگی ہے؟ زیر ہے نا، لیکن یہ کھڑا زیر کی طرح سے لگی ہوئی ہے نا، ہے نا؟ یہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے جو ہم لوگ ٹریڈیشنل پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ والا مصحف پڑھیں تو آپ میں یہ زیر نظر نہیں آئے گا۔ جو پاکستانی مصحف ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس میں بسم اللہ الرحمن، اس میں کھڑا جو زیر لگتا ہے وہ صرف الف کی ریپلیسمنٹ پہ لگتا ہے، جیسے ماں
रहमान, अर्रहमान। तो इसकी साउंड, मीम की साउंड को प्रोलॉन्ग करने के लिए खड़ा होता है, या अल्लाह। तो यहाँ पे अलिफ, अलिफ का रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये जेर का रिप्लेसमेंट नहीं है। जो जो कि ये जो टर्किश मसहफ है, इसके अंदर आपकी आवाज आनी बंद हो गई डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आनी बंद हो गई है? हाँ अब आ रही है। सॉरी। तो ये जो टर्किश मसहफ है, इसके अंदर आपने गौर किया कि ये इसके अंदर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा बेटर टर्किश मसहफ, क्योंकि ये ज़रा ब्लर्ड नज़र आ रहा है आपको, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बेटर जो टर्किश मसहफ है वो खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे उसमें आपको ज़रा साफ नज़र आएगा। ये वाला ज़रा ब्लर्ड वर्जन है, मैंने आपको ज़रा साफ वर्जन में आपको दिखाता हूँ। तो ये अब आप देखें, ये नज़र आ रहा है अब आप लोगों को, ये वाला वर्जन, ठीक। तो इसके अंदर आप देखिए कि आलमीन के नीचे जो है ना, ये बजाय जेर के खड़ा जो है ना, ये अर्रहीम के नीचे आपको नजर आ रहा है। और ये पूरा थ्रू आउट मुसहफ जो है ना, इनके जितने हैं, तो उसके अंदर इन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। एक तो ये मुझे आपसे बात करनी है कि आपको ये इसका मतलब, जबकि जो हमारा, जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, उसमें ये एक खास मौके पर यूज होता है। वो मौका ये होता है कि जब आखिर में अगर कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उसमें जैसे इलैही या फीही, तो उसमें खड़ा जेर लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं खड़ा अलिफ। लेकिन बिलुमूम, जैसा मैंने बताया कि ये अलिफ के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि मुसहफ अगर मदीना आप करें, जो सऊदी अरब में पब्लिश है, और इसके अंदर जब ये जो मलिक फहद, मुजम्मा मलिक फहद में पब्लिश हुआ है, उसके अंदर अगर आप देखिएगा, तो उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो उसमें भी नहीं है, उसमें ज़ेर लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान में अलिफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर ये तो मैंने एक आपको बताई कि डिफरेंट मुसहफ में फ़र्क क्या होता है, और यहाँ पर मैं अपनी जो बात है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि एक मैंने वीडियो शेयर की है, और वो वीडियो मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को दिखाऊंगा। Every single mushaf that exists today or has ever existed is written in something called Uthmani Codex, which is the style of writing in which the Quran was written. This style is the reason why words like salah and zakah and many other words are written a little differently from how you would normally write them in regular Arabic. So every single mushaf follows this codex, no matter how different they look aesthetically. However, in terms of their formatting, they might be different, and this can make your experience easier or a little bit more challenging. So if you are a beginner or about to start learning the Quran, or you might already be facing some challenges, this lesson can help you decide what is the best mushaf that suits your skills and needs. First,
There are majorly three main styles of mushafs. In terms of content, they are exactly the same, of course, but their formatting is different. We have Arabic, Turkish, and Urdu mushafs. Within each of these three categories, there are several variations, which are just aesthetic and organizational changes. But eventually, these variations follow the same formatting pattern and the punctuation system of the category. So what applies to one variation applies to the rest within the same category. So which of these three should you use, especially if you are a beginner? The way we're going to do this is simply compare a number of criteria and characteristics and see how they are presented in each mushaf. Let's start with the first one, which is their availability. Right away, it is no secret that I will Arabic mushaf stop is here. more and a little और bit more challenging. आपको आवाज आ रही थी ना इसकी? जी आ रही। अच्छा, अब जी मैं सर, आपको एक चीज और मैं पूछता हूँ। यहाँ पे आयत लिखी हुई है 43 आयत। तो उर्दू मुसहफ में हम उर्दू नंबर से लिखते हैं 43, अरबी में 43 लिखा है, और जो टर्किश मुसहफ है उसमें भी अरबी से। और मैंने एक आपको बताया था कि अक़ीमुस्सलाह जो है उसमें ये ज़ेर को खड़ा अलिफ लिखते हैं ये लोग, और ये बहुत सारे देयर आर मोर, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ। और लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज पे है कि जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर अक़ीमू ये जो अलिफ है और अस्सला का अलिफ है, इसमें अगर आप देखें तो अक़ीमू के जो अलिफ है उसके ऊपर हरकत मौजूद है। आपने डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज हरकत, तो अब एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरकत। तो हरकत मौजूद है, जबकि अस्सला के ऊपर इस अलिफ पर हरकत नहीं मौजूद है, इस अलिफ पर हरकत मौजूद है, अज़्ज़का पर हरकत मौजूद नहीं है, अरकऊ पे इस अलिफ पे हरकत मौजूद नहीं है। तो अब हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पढ़ें कि अक़ीमू के इसके ऊपर हरकत मौजूद नहीं है, तो क्या ये सारे अलिफ एक जैसे हैं या इनमें फ़र्क है या ये कोई और चीज़ है? जबकि अगर आप जो अरबिक मुसहफ है जिसको हम मदीना का मुसहफ कहते हैं, उसमें हर जो अलिफ है जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसमें बाकायदा उसको आइडेंटिफाई किया है कि पहला अलिफ अक़ीमू का ये जो है ये हमज़तुल क़ता है, यानी एक ऐसा हमज़ा जो चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए उसको पढ़ा जाता है। दूसरा अलिफ अक़ीमू का ये प्लूरल का है, इसको ऊपर ज़ीरो है, यानी इसको ना बीच में पढ़ेंगे ना बाद में पढ़ेंगे। इसको आप अगर आपने रुकना चाहें तो आप इस तरह नहीं पढ़ सकती कि अक़ीमुआ, बल्कि आप इसको जस्ट यू विल ड्रॉप इट। ये इसकी कोई और सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग जब ग्रामर की क्लास करेंगे तो उसमें हम यानी आप लोग एडवांस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इसमें इसकी रीजन है, लेकिन ये कभी भी नहीं पढ़ा जाता, नेवर। अस्सला बिगनिंग में पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर ये बीच में आ गया, जैसे यहाँ पे बीच में आ गया ना, तो इसको हम पढ़ेंगे मीम के साथ मिलाएंगे, मीम दम्मा, मीम को मिलाएंगे स्वाद के साथ। सॉरी, मैंने कहा ये हमज़तुल वस्ल है ना? जी जी, वेरी गुड, शाबाश। तो दिस इज कॉल्ड हमज़तुल वस्ल। तो हमज़तुल क़ता है, ये क़ता के अंदर ऐन होता है ना, तो ऐन का सर है, और वस्ल में स्वाद होता है तो स्वाद का सर लगा हुआ है, ताकि आपको, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगी? आप पढ़ेंगी, आप मीम को मिलाएंगी स्वाद से, तो आपने वाव ड्रॉप कर दिया, ये वाला अलिफ ड्रॉप किया, दूसरा हमज़तुल वस्ल ड्रॉप किया, फिर लाम ड्रॉप किया, और फिर डायरेक्ट आपने मीम को मिलाया स्वाद से। तो अक़ीमुस्सला, अक़ीमुस्सला, ठीक है ना? तो आपको ये पता चल गया वाओ क्यों ड्रॉप करेंगे? जी। वाओ क्यों ड्रॉप करेंगे? यहाँ पे तो वो लॉन्ग वॉवल है ना, तो उसको तो प्रोनाउंस करना चाहिए। कौन सा लॉन्ग वॉवेल है यहाँ पर? ये मीम के बाद जो वाव है, जी जी, मीम के बाद जो वाव है वो अगर आप आप मेरा इसको इसको भी ड्रॉप करेंगे।
अगर आप स्टॉप करेंगी तो प्रोनाउंस करेंगी, लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा लॉन्ग वॉवेल। इसके लिए कंडीशन ये है कि आगे हमजातुल वस्ल होना चाहिए, तो फिर हम इसको ड्रॉप करेंगे। से अगेन, क्या कह रही हैं आप, क्या होना चाहिए कंडीशन? मैं कह रही हूँ वाव को ड्रॉप करने के लिए कंडीशन ये है कि आगे हमजातुल वस्ल होगा तो फिर हम वाव को ड्रॉप कर देंगे। जी जी, ज्वाइन कर रही हैं ना आप, तो इसलिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर सपोज करें किसी वजह से स्टॉप करना चाहती हैं, तो ये मीम के बाद ये वाव जो है ये इसकी मीम की साउंड को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप हमज़तुल वस्ल आगे आ रहा है तो आप ज्वाइन करेंगी, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगी तो फिर आप इसको जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे है अरकाऊ, यहाँ पे है ना अरकाऊ, तो इसके अंदर अरकाऊ के बाद आगे हमज़तुल वस्ल तो नहीं आ रहा है, मा आ रहा है। तो आप इसको, आप ये नहीं पढ़ सकते कि अरकाऊ सिर्फ एन के ऊपर, बल्कि आप अरकाऊ मा अर्राकीन, तो इस तरह पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पे अकीमू अस्सलात नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे अकीमुस्सला, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये इंशाअल्लाह कभी जब ज्यादा गुफ्तगू होगी तो हम तजवीद में डिस्कस करेंगे। तजवीद जो है ना, इट्स अ वेरी वंडरफुल वे के जो स्क्रिप्ट है वो कैसे पढ़ा जाता है। और तजवीद का ताल्लुक कुरान से नहीं है, तजवीद का ताल्लुक इंग्लिश से भी है, उर्दू से भी है, फारसी से भी है, और तजवीद हर लैंग्वेज में होती है, यानी पढ़ने का तरीका, तो उसको कहते हैं तजवीद, दैट्स इट। तो इसके सबसे अंदर इंटरेस्टिंग अरबिक की तजवीद है, जी मुझे बहुत मजा आता है इसकी तजवीद पढ़ने। जी जी, क्या करेंगे आप, कहें दोबारा। मैंने कहा सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की जो है ना वो अरबिक तजवीद है। हाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना इंटरेस्ट से अरबी को, तो इसलिए हमें पता है। लेकिन ये है कि तजवीद दरअसल आर्टिकुलेशन फोनेटिक है। और मैं दरअसल अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट को आजकल जो फिजिक्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी स्टूडेंट है मार्गरेट, तो उसको पढ़ा रहा हूँ। तो उसको मैंने बताया कुरान शरीफ से, तो वो बड़ा मतलब शी वॉज एक्साइटेड कि ये क्या कुरान शरीफ में भी है फिजिक्स ऑफ स्पीच। मैंने कहा यस। तो आर्टिकुलेशन आपने देखा होगा कि तजवीद की किताबों में वो पिक्चर बनी होती है जिसमें नाक, जबान और लिप और थ्रोट सब चीजें होती हैं। तो अच्छा, ये सब खैर, देखा है मैंने। हाँ, अब हम लोग चलते हैं। तो ये आपको जरा डिफरेंस बता रहा था। ये जो वीडियो है ना, ये मैं पूरी नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। मतलब ये है कि आप इसको प्लीज घर में देखें और इल्म के लिए देखें। हुमायूं साहब, आपका कोई सवाल है? आपने सर मैंने तो अभी भी स्टार्ट किया इसमें तो मैं आपको सुन रहा था। तो ये जो है कि कुरानिक अरबिक जो है सर, तो एक जो है जो लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं कि एकेडमिक अदबी अदबी ज़ुबान और जो अरबिक जो इस्तेमाल होता है कुरान पाक में, कि इज देयर एनी डिफरेंस और इट इज सेम थिंग? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इसके ऊपर 3 महीने तक मैंने क्लासेस ली हैं। हमारे साथ जो हैं दूसरे शाह साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। एक डिफरेंस तो अभी आपको पता चल गया, उसको जो Yes. कहते हैं ना, वो हम कहते हैं, उसको कहते हैं रस्म इमलाई। जो Yes, जो sir. आजकल जैसे अखबारात में लिखी जाती है अरबी, या रिसालों Yes. में अरबी लिखी जाती है, वो होती है ना, अरबी किताबें Yes, लिखी sir. जाती हैं, तो उसे Yes, कहते हैं sir. रस्म इमलाई। रस्म इमलाई जो होता है उसके अंदर जबरदेर पेशी नहीं होती, पहली बात तो ये है। Yes, sir. है ना, एक छोटी सी बात है। Yes, sir. दूसरा ये है, बिल्कुल प्लस ये कि वैक्यूबलरी का भी फर्क है, क्योंकि ये कुरान शरीफ जो है ये कब नाजिल हुआ था, 1400 साल पहले सर। और 1400 साल में क्या लैंग्वेज में तब्दीली होती है? हो सकती है, हो सकती है। बहुत सारे अल्फाज ऑब्सोलीट हो गए हैं,
कुरान शरीफ के Yes, जो sir. आजकल नहीं बोले जाते आमतौर पे, Yes, sir. लेकिन Yes, बहुत sir. सारे अल्फाज जो हैं नए आ गए हैं। कुरान शरीफ की वैकेबुलरी बहुत कम है, कुरान शरीफ के अंदर सारे अल्फाज नहीं है। अगर आप मॉडर्न अरबी Yes. पढ़ेंगे तो उसमें Yes, sir. आपको हजारों ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो कुरान शरीफ में नहीं है। तो कुरान शरीफ की जो डिक्शनरी है वो सिर्फ कुरान शरीफ के अल्फाज के लिए है। Yes, sir. और प्लस ये बहुत सारी और डिफरेंट है, ये दिस इज नॉट द टाइम, लेकिन But sir, simple- बट सर जब हम देखते हैं कि क्लासिकल अरबिक, जब हम जाहिली दौर की तरफ जब हम इशारा करते हैं, तो जाहिली दौर की अरबिक और कुरान पाक की अरब, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू मॉडर्न कम्युनिकेशन। राइट, दैट आई एग्री कि जो कुरान शरीफ की अरबिक है वो कुरैश के लहजे में लिखी गई है, और ऑब्वियसली कि जाहिलिया का मतलब ये है कि बिफोर इस्लाम जो एरा होता है, डेज ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, और जो इल्मिया का होता है वो है कि जब इल्म आ गया है। एंड व्हाट इज इल्म? इल्म इज कुरान, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो ये मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, अगर किसी और को भी चाहिए तो आई विल सेंड द लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ इसको। अब मैं तीसरा पॉइंट पे आता हूँ, और वो पॉइंट ये है कि डिफरेंट जो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको नजर आ रही? यस तो सर। ये हमने अभी जिक्र किया था कि हरकत क्या होती हैं। तो एक हरकत को हम उर्दू में कहते हैं ज़बर, और अरबी में कहते हैं फतहा। जैसे ये बल के ऊपर बे के ऊपर लिखी है, दम्मा के ऊपर, ये चूंकि आसान है तो मैं जरा जल्दी जाऊंगा। दम्मा कहते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो डोंट वरी, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट। these are very fundamental things, elementary के अंदर। एलिमेंट्री है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब अभी मैं एलिमेंट्री पे ही आप लोगों का टेस्ट लूंगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम होगी आपको ठीक है ना। तो ये, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपको पता चले कि हरकत क्या होती हैं। इनको एराब नहीं कहते। टेक होम मैसेज ये है कि आप इनको एराब नहीं कहते, इनको कहते हैं हरकत। ये आज का अहम सबक है जो मैं आज पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि एराब किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर सुकून होता है। सुकून कई तरह से लिखा जाता है। एक कॉमन तरीका ये, इसको जज्म कहते हैं। फिर तशदीद होती है, जैसे वज़ैतून में ज़े के ऊपर तशदीद है, इसको कहते हैं तशदीद, ठीक है ना। फिर उसके बाद पेश पे भी हो सकती है, ज़ेर पे भी हो सकती है। फिर डबलिंग ऑफ द हरकत होती है, यानी एक हरकत बजाय एक के दो लिखी जाती हैं। वो ज़बर भी लिखी जा सकती है, ज़ेर भी लिखी जा सकती है, और पेश भी लिखी जा सकती है। That's called तनवीन। जी माशाल्लाह, आपकी तो बड़ी अच्छी नॉलेज है भाई। तनवीन है, और तनवीन जो है वो यहाँ पर है, जैसे इसको है। अब आपकी जब इतनी अच्छी नॉलेज है तो आप ये बताइए कि जो ज़बर की तनवीन है, पेश की तनवीन है और ज़ेर की तनवीन है, इसमें कोई फर्क है लिखने में? आपके सामने एग्जाम्पल भी मौजूद है, तो आप बताइए जरा, कोई फर्क आपको नजर आता है? सिर्फ ज़बर की तनवीन में आप बताइए, कोई डिफरेंस नजर आता है? और अभी आपने जिक्र किया था तजवीद का, कि कुरान शरीफ की किसी ने कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ ज़बर की तनवीन का बताइए। कि जो ज़बर की तनवीन होती है ना, उसके साथ अलिफ लगाना पड़ता है। वेरी गुड। तो वो अलिफ जो है ना, वो सिर्फ ज़बर की आई मीन फतहा की तनवीन में होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको अगर आप स्टॉप करें तो आप कैसे पढ़ेंगी? पहले आप इसको पढ़ के दिखाएं, पहले इसको पढ़ के दिखाएं आप। मुस्लिमातन, मुस्लिमातन, ठीक है ना। अगर आप ज्वाइन कर रही हैं तो आप इसको पढ़ेंगी मुस्लिमातन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्टॉप करेंगी तो क्या कैसे पढ़ेंगी? मुस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्लिमा। एग्जैक्टली। ये जो है ना हे में बदल जाएगी। अब आप इसको पढ़ के दिखाएं दूसरे को। लतीफन,
लतीफ़ी अगर लतीफ़ा। कंटिन्यूअस पढ़े हैं, लेकिन अगर स्टॉप करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? और लतीफ़ा। लतीफ़ा, वेरी गुड, ठीक है ना। जबकि पेश की तनवीन में और ज़ेर की तनवीन में कभी भी अलिफ नहीं लगता, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्योंकि जब तक हमें एग्जाम्पल नहीं नजर आया तब तक हमें समझ भी नहीं आता कि भाई क्या मतलब है। तो तो ये इसके वो जो मुस्लिमा था वर्ड, उसके साथ तो मतलब जो गोल थे उसके साथ तो अलिफ नहीं था, हालांकि वो फतहा तनवीन थी। क्यों नहीं था? अलिफ नहीं था मुस्लिमा के साथ। क्यों नहीं था भाई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगाना इस भूल बात गए। का मुझे नहीं पता है, आप बता दें। एक्सेप्शन तो नहीं है सर? एक्सेप्शन है, तीन जो है ना, एक्सेप्शन है सर। तीन के एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये लफ्ज, जी। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि अर्ज खलीफा। खलीफतन, है ना। तनवीन है कि नहीं है? इस पे अलिफ तो नहीं लगा जी हुआ है। हाँ। तो क्या क्या है? आपने आपने जो बात बताई थी मुझे, वो ये बताई थी कि मुस्लिमतन पे अलिफ नहीं लगा हुआ है। बंद करो सर। जी, तो क्या रूल क्या बना, आप ये बताएं ना। रूल रूल मुझे ये नहीं है कि पता अगर है। ता मरबूता, इसको कहते हैं हम लोग ता मरबूता, दो तरह की ता होती है ना, एक गोल ता होती है और एक जो होती है ता वो, मुदव्वरा। हाँ, ता जो होती है वो प्लेन ता होती है। तो ये जो ता मरबूता है और वर्सेस ता मबसूता, उनमें उसमें डिफरेंट है। तो ये जब भी आती है ना तो ये एक्सेप्शन है, इसके साथ कभी भी अलिफ नहीं लगता। और ये मैंने आपको मुसहफ में बताया कि जैसे खलीफा है ना, तो खलीफा में ता मरबूता लगी हुई है ना, तो इसलिए इसमें अलिफ नहीं लगता। इसी तरह हमजा और अलिफ मकसूरा थोड़ी सी मुश्किल अल्फाज हैं, आप लोग सीख लीजिए, इन दोनों में भी अलिफ नहीं लगता। तो तीन एक्सेप्शन है, नंबर 1 गोल था, नंबर 2 हमजा, नंबर 3 अलिफ मकसूरा, ये तीन अलिफ है। मकसूरा दिखा दें, वो उसकी कोई एग्जांपल अगर है तो। अलिफ मकसूरा की मेरा ख्याल है एग्जाम्पल मुझे ढूंढनी पड़ेगी तनवीन के साथ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन अलिफ मकसूरा मैं बता सकता हूँ आपको। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लफ्ज फसजदू इल्ला इबलीस, अबा। तो ये अबा में ये जो है ना, ये सॉरी, तो ये जो है ना अबा जो है ना, ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। या अला हम जो कहते हैं, तो उसके अंदर वो या नहीं कहलाता बल्कि अलिफ मकसूरा कहलाता है। तो ये अलिफ मकसूरा की एग्जाम्पल है, लेकिन इस वक्त मुझे उसके साथ फतह के साथ ढूंढनी पड़ेगी। ये मिल गई भाई, आपकी किस्मत अच्छी थी। ये नंबर 38 आयत पढ़े आप, पढ़े पढ़े। कहाँ है? उलना से याद ओके। है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वेरी गुड। अब आपने देखा कि जमीयन जो है ना, इसके एन के ऊपर तनवीन है जी। ना। और उसके बाद तनवीन का रूल क्या हमने बताया था कि अगर फतह तनवीन आएगी तो आपने मुझे बताया कि उसके बाद अलिफ लगनी चाहिए। जी। उसके बाद दाल के बाद जो है ना, उसके बाद यहाँ पर आ गया है फतह, वो अलिफ मकसूरा आ गया है। तो अलिफ मकसूरा जब आ गया है तो उसमें दाल के ऊपर अलिफ नहीं लगा हुआ है, ये एक्सेप्शन है, वन ऑफ द ठीक। एक्सेप्शन है कि हमजा, अलिफ मकसूरा और ता मरबूता यानी गोल ता, ये जब भी आती हैं तो उसके ऊपर
नहीं लगता। अच्छा जनाब, अब हम सर कंटिन्यू ये जो करते हैं। सर ये जो है ना, जो आपने कहा कि अलिफ मकसूरा है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, इसमें कुछ फर्क है या इट इज सेम थिंग? जी जी, मैं बताऊंगा। जब हम लोग मद, ममदूदा का मतलब होता है बढ़ाना, बिल्कुल मद का मतलब होता है बढ़ाना। बिल्कुल। तो जो 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 अलिफ होता है वो बेसिकली फतहा की साउंड को बढ़ाता है, जेर की साउंड को या बढ़ाती है, यस और सर। पेश की साउंड को वाव बढ़ाती है। तो इनको कहते हैं मद्दे असली। और उसके बाद मद्दे फराई होते हैं, यानी यस सर। एक्सटेंशन फर्दर भी होती है। तो वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम उसको दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा जनाब, सर, तो अब आपने बात गौर, पूछूं? जी जी सवाल पूछिए अब आप। सर अभी ये जो आपने वो सब शेयर किया था ना, उस्मानी वाला, तो उसमें ना कहीं पर अ, दो जबर जो है वो एक एक बिल्कुल इक्वल साइज में आ रहे हैं, और कहीं पर हम्म, जो है ना वो थोड़े फासले के साथ आते हैं। यही पेश के साथ होता है, दो पेश के साथ भी हो रहा है और जबर के साथ भी हो रहा है। ये मुझे बहुत दिनों से बड़ा पिन कर रहा है कि ये क्यों ऐसा है। आपने एक दफा कहा था, मैं बताऊंगा आज ही बता देते हैं। जी। हम जरा देख लें पहले कि कहाँ हो रहा है अभी पहली ये। लाइन में था। मैं बताता हूँ आपको, आप बेफिक्र रहें। जब तक मैं आपके साथ हूं तो आपको अरबी जबान की हर बारीकी, दरअसल मैं यहाँ पे लैंग्वेज से ज्यादा बारीकियों में जो कुरान शरीफ पढ़े ना, तो आता क्या आपकी दिलचस्पी। अब आप ये पढ़ें, वकुला मिनहा रगदन, ये है ना। अब आपका सवाल ये है कि ये दो जबर जो हैं ये पैरेलल क्यों लिखे हुए हैं। नजर आ रहा है आप सब लोगों को? यस सर। जी आ ये रहा है। रगदन नजर आ गया सबको? यस सर। हम्म, ठीक है। अच्छा, इनका सवाल ये था कि दो जबर, अभी सिर्फ जबर पे हम बात कर रहे हैं, हालांकि जेर पे भी ये मसला, यानी मसला नहीं है, रूल है ये एक छोटा सा। आज हम आपको बता दूंगा तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा ये रूल। और दूसरा ये है कि जमीयन याद नजर आ रहा है आपको? जी सर। कुल नहबितु जमीयन। तो इन्होंने सवाल ये किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लगता है मुझे हमेशा ये, कि और मुझे भी लगता था पहले कि यार ये इन्होंने जबर क्या गलती से फिसल गया है, ये पहला जबर और दूसरा जबर, जबकि यहाँ पे रगदन में तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो ये है, मुसहफ मदीना जो लिखा हुआ है वो तजवीद के लिहाज से लिखा हुआ है, तजवीद के लिहाज से लिखा हुआ है। और ये तजवीद के लिहाज से जो लिखा हुआ है, इसमें जब आप पढ़ेंगी तो आपको रूल पता होने चाहिए कि तजवीद के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल होता है इजहार। और इजहार नून साकना का या तनवीन का उस वक्त होता है जब उसके बाद हरूफ हलकी आते हैं। मिसाल के तौर पे ऐन, हा, ठीक है। तो आप देखें रगदन में हा आया है, यानी यहाँ पे रगदन साउंड कैसी बनी? नून साकिन की साउंड बन गई। तनवीन की जितनी भी तनवीन होती है उन सब में साउंड जो बनती है वो नून साकिन की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे बनी रगदन। अब नून साकिन के बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? हरूफ हलकी से शुरू हो रहा है। ऐन, हाय, हा, ख्वा, गैन, ये सारे जो है होते हैं ना, ये सारे हरूफ हलक से निकलते हैं, उनको हरूफ हलकी कहते हैं। तो इसको कहते हैं इजहार। इसका मतलब है कि नून को आप बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे। आप इसको रगदन हैसु नहीं पढ़ें, आप इसको पढ़ेंगी रगदन हैसु। वर्सेस ये जो दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है शजरतन, मैं आपको यही पे बता देता हूँ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो शजरतन में नहीं, ये
आगे जा रहा है, आगे बताना पड़ेगा, ये तनवीन नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया ये रूल आपको कि जी सर, अगर आ गया। अगर दो जबर पैरेलल है, इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि उसके बाद जो फॉलोइंग वर्ड है वो हुरूफ हलकी से शुरू हो रहा है और मुझे इसको पढ़ना है रगदन। क्लियर? ठीक। ठीक है। अब आप दूसरा ये पढ़ें, ये वाला जमी अन। अब आप इसको जमी अन नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि इसके अंदर दो जबर अलग अलग लिखे हुए हैं, और जब दो जबर अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये इख्फा की तरफ इशारा है। इख्फा का मतलब ये होता है कि आप छुपाना। हम कहते हैं ना खुफिया, खुफिया पुलिस कहते हैं हम लोग। खुफिया का मतलब होता है छुपा हुआ। तो हम नून की साउंड को छुपाते हैं, उसको उसका इजहार नहीं करते। हम कहते हैं जमी आम इम्मा, तो इसको, या हुदाम फा, तो ये हुरूफ इख्फा आ रहे हैं उसके बाद। तो जब भी हुरूफ इख्फा आएंगे तो हमेशा जो तनवीन होती है उसके अंदर ये चेंज होता है। समझ में आ गया आप लोग? नहीं, दे आर जी सर, अपोजिट बिल्कुल आ गया। बहुत बहुत इख्फा और शुक्रिया सर। इजहार। इख्फा और इजहार। और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताता हूँ, आई होप कि आपको देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मुसहफ है किंग सऊद यूनिवर्सिटी का, नजर आ रहा है आपको? जी। ये बहुत अच्छा मुसहफ है, और मैं अक्सर ये रेफर करता हूँ अपने स्टूडेंट को भी, मैं कहता हूँ, और इसके लिए लाइक एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी, मैं तंजील.net पे भी जाता हूँ, ये जो है एक दूसरी साइट है उसके ऊपर भी जाता हूँ, कुरानिक कार्पस पे भी जाता हूँ, लेकिन एक वेबसाइट जो मेरी पसंदीदा है वो किंग सऊद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसमें आप देखिए कि इसमें ऑप्शन है, और इसके अंदर ऑप्शन क्या है कि मैं आपको वही बताता हूँ जाके, ताकि आपको पता चले कि सपोज करें कि मैं सूरह बकरा पे जाता हूँ, सूरह बकरा की लेट से 7वीं आयत पे जाता हूँ मैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, ताकि आपको, वो कौन सी आयत थी? ये वाली आयत थी ना, रगदन वाली, नजर आ रही है आपको आयत ये वाली? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा कि इसके अंदर मैं ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ। ये आयत है तो इसके अंदर ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसके अंदर ये है, हफ्स का है, फिर दूसरा है, सपोज करें अगर वर्ष की रिवायत से आप पढ़ना चाहें तो वर्ष की रिवायत से भी है, और तीसरा ऑप्शन जो है ना वो है हफ्स का तजवीद के साथ। तो आप इसको क्लिक कर लें, इस ऑप्शन को तजवीद के साथ। जब आप ये तजवीद वाला क्लिक करेंगी ना, तो आप देखिएगा कि ये डिफरेंट वर्जन खुलेगा, और ये कलर्ड वर्जन खुल जाएगा इसका। जब आप कलर्ड वर्जन खोलेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर जो है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा आपको
अब ये इतना क्लियर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। नीचे जो है ना इसका मेरे पास क्लियर भी वो है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो हरे रंग में है ना जितने अल्फ हरकत, जैसे आप ये देखिए जमी अन में आपको शायद ये नजर आ रहा हो कि ये एन के ऊपर जो 2 जबर लगे हुए हैं ये ग्रीन कलर में इन्होंने कर दिए हैं, और हुदन में ग्रीन कलर के कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मकसद है कि ये जाहिर करता है इख्फा को, क्योंकि ये जो मुसहफ है ये तजवीद के लिहाज से लिखा हुआ है, और इसके अंदर जैसे अभी एक साहब ने कहा था कि आयात मद की बात है, तो बनी जो है ये रेड के इसका मतलब, और डिफरेंट कलर जो है ऑरेंज कलर वर्सेस रेड कलर, इसमें मद का क्या मकसद है। तो ये जो मुसहफ है ये तजवीद के लिहाज से लिखा हुआ है, और इसके अंदर आपको नजर आएगा कि आप डायरेक्ट, और ऐसे मुसहफ जो हैं वो अरबी जबान यानी इस स्क्रिप्ट में मौजूद है और पाकिस्तानी स्क्रिप्ट में भी मौजूद है आजकल। तो उसमें आप जब भी देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो पाकिस्तानी मुसहफ है उसमें ये दरअसल फर्क नहीं होता। यानी अगर आप ये पाकिस्तानी मुसहफ है इसमें अगर आप जाएं तो इसके अंदर जो 2 जबर हैं या 2, वो हमेशा जैसे माँ अन है, तो अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये माँ अन पढ़ना चाहिए या माँ अंग पढ़ना चाहिए। ये आयत है नंबर 22, ठीक है, हाँ सही है कह ना। रहे हैं आप, बिल्कुल हाँ, जबकि मुसहफ मदीना में जब आप गलत जाएंगे है। इसके अंदर ये आपने आयत 22 पढ़ी। अब मुसहफ मदीना में आप 22 जब पढ़ेंगे आयत, मैं वही आयत निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो 22 आयत है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि यहाँ पे माअन व अनज़ला मिनस समाई माअन। तो अब आप ये जो माअन लिखा हुआ है ये आपने देखा कि एक साथ नहीं लिखे हुए हैं, जबकि उर्दू मुसहफ में आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका इजहार होगा या इसका इख्फा होगा, क्योंकि आपको पता है कि फा जो है वो हरूफ इजहार हल्की नहीं है। हुजूर हलकी हरूफ हलकी नहीं है, सॉरी हरूफ हलकी नहीं है। तो लेकिन फिर भी क्यों लिखा हुआ है ये, है ना। तो ये जो मुसहफ मदीना है इसकी ये ब्यूटी है कि इसके अंदर तजवीद के लिहाज से लिखा रहता है। आई होप के नेक्स्ट टाइम आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब का या तो इदगा या तो इख्फा के हरूफ आ रहे हैं या इदगाम के हरूफ आते हैं। इदगाम के हरूफ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वस्समा बिना अन, तो बिना अन जो है इसके ऊपर भी देखें, दो हमजा के ऊपर 2 जबर अलग लगे हुए हैं, है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि हमजा वन ऑफ द एक्सेप्शनल लेटर है। हमने बताया ना कि अगर फतह तनवीन है तो अलिफ लगाना चाहिए, है ना। लेकिन हमजा के बाद मैंने बताया 3 अलिफ मकसूरा, हमजा और ता मुदव्वरा या गोल ता, उस पे नहीं लगती। तो यहाँ बिना अन है। अब बिना अन के बाद वाव आ रहा है। वाव क्या है, हरूफ हलकी तो नहीं है, नहीं। हरूफ हलकी तो नहीं है, लेकिन ये हरूफ है जो इदगाम के हरूफ में आता है। जैसे हम कहते हैं ना मैं वलीयूं वला नसीर, तो इदगाम हो जाता है, नून साकिन या तनवीन का इदगाम होता है, इदगाम बेगुन्ना भी कहते हैं हम इसको। तो अब ये जब वाव आता है तो इसलिए इदगाम हो जाएगा, यानी इन अदर वर्ड इजहार फिर भी नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि जब भी क्लियर 2 जबर एक के ऊपर एक हैं इसका मतलब है इजहार। इज इट क्लियर। और यही यही जो है ना, ये हमजा की एक और एग्जाम्पल ये फतह के साथ है, और ये जो हमजा है ये कसरा के साथ है, लेकिन इस हमजा में आगे काफ आ रहा है और कुल्ल शैइन कदीर। तो ये काफ जो है ये हरूफ हलक़ी में नहीं है, तो इसलिए इसका जो है इख्फा होगा, तो इसलिए लगा हुआ है। आई होप कि ये जो है ये आपको रिज़क़न के अंदर आप देखें, मिनस समरात रिज़क़न, तो इसके अंदर भी इजहार नहीं होगा बल्कि ये इदगाम होगा, लेकिन इसमें एक फ़र्क है।
इस इदगाम को कहते हैं इदगाम बिगैर गुन्ना। हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना बगैर, भाई तुम्हारे बगैर मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो लफ्ज क्या है, बिगैर। तो बिगैर गुन्ना, बगैर गुन्ने के, ठीक है। तो हम इसको हम उर्दू में कहते हैं बगैर और अरबी में कहते हैं बिगैर। तो बिगैर गुन्ना, तो ये यहाँ पर गुन्ना नहीं होता, हम कहते हैं रिज़्क़ल लकुम। तो हमेशा तनवीन के बाद अगर रा या लाम आए तो हमेशा गुन्ना खत्म हो जाता है, कभी भी गुन्ना नहीं कहते, ठीक है। तो हम आप इसको जैसे आप कहेंगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह गलत है, क्योंकि नून साकिन के बाद अगर लाम आए तो मिलाते हैं, उसको कहते हैं इदगाम बिगैर गुन्ना। यहाँ पे रिज़क़न है और उसके बाद लाम आ रहा है तो हम कहेंगे रिज़क़ल लकुम, ठीक है, रिज़क़ल लकुम। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ, बहुत सारे हमने कंपैरिजन किया। आई होप कि ये सब लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और किस तरह से आप लोग मुख्तलिफ वो करती हैं। एक और मज़े की चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये है, अभी हम हरकत की बात कर रहे थे, ये जो है हरकत, ये तो आपको समझ में आ रही है। आप में से कोई सबको ये पता है सूरतुल फातिहा याद होगी, है ना? याद है ना? जी जी। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी हरकत निकाल देते हैं, इसकी हरकत खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी हरकत मैंने निकाल दी। ठीक है। अब और बल्कि ये तो याद है ना सबको। अब टेस्ट जो है वो याद पे थोड़ी होता है, जो रटा हुआ है उसके ऊपर टेस्ट कहाँ से होगा। टेस्ट जो है वो हम करते हैं किसी ऐसे के ऊपर जो कि हमें याद नहीं है। मिसाल के तौर पे लेट से सूरह हूद हमने खोल ली, ठीक है, तो ये आ गई, ठीक है। तो पहली आयत है सूरह हूद की, कोई पढ़ेगा? कोशिश कर सकते हैं, वैसे पढ़ा तो नहीं जा रहा। अब पता चला आपको कि क्या लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया, अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया, क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा है। आप ये पढ़ सकती हैं ऊपर जो बिस्मिल्लाह लिखा है, ये पढ़ सकते हैं। जी वो तो पढ़िए पढ़िए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और ऊपर ये सूरह, ये पढ़िए अब, सूरह हूद जो लिखे हुए। अलिफ लाम रा। सर यहाँ तो किताब पे ही हम अटक जाएंगे कि किताब भी है, ये किताब बा है। है ना? बहरहाल अलिफ लाम रा। जी सर, हाँ ये मुश्किल अच्छा, है ना, मुश्किल हो गया ना। अब मुश्किल ये इसलिए हुआ है कि हमने वो चीज बड़ी खोजी जबान जो नहीं याद है। नहीं है। तो हम इसको जो है ना, हम उस्मानी स्क्रिप्ट में डाल देते हैं। अब जरा पढ़िए आप, अब आसान हो गया आपके लिए। जी सर, यस। बिल्कुल। अब पढ़िए जरा, अब आप दोबारा से। अलिफ आउज़ु लाम। बिल्लाह। चले आप पढ़े। पढ़े पढ़े पढ़े, कोई बात नहीं, आप पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिनल लदुन हकीमिन। होल्ड ऑन, आपने ये सही नहीं पढ़ा। मिल्लतुन। लदुन, जी सर, सॉरी। क्या रूल बताया था कि नून वही साकिन तो, के नून बाद जब के बाद लाम लाम आ आता जाता है है तो तो मिल कहते हैं, नून की बेगैर साउंड गुन्ना। खत्म हो क्या जाती है। कहते हैं? बेगैर मिल गुन्ना। लदुन, मिल बेगैरी मिल लदुन, इतकाम। नून नहीं पढ़ना है भाई। हाँ, नहीं, मिल सर, मिल ही कह रहे हैं, मिल लदुन।
बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलें आप पढ़िए, मिन लदुन, हकीमिन खबीर। ठीक है ना? अच्छा, अब आप याद रखिएगा। फिर याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलें अब आप पढ़िए जरा। दोबारा से ये पढ़ो। हाँ दोबारा से पढ़े ना, अल्लाम देखता हूँ मैं याद है कि नहीं है, याद है। किताबुन अहकमत आयातिही ये हमजा सुम्मा के ऊपर आपने जबर पढ़ा है या पेश पढ़ा है? जबर पढ़ा जबर है, ठीक है। जबर चलिए। आयातिही सुम्मा फुसिलत मिन लदुन फुसिलत पढ़ा है या हकीम फुसिलत पढ़ा है? फुसिलत अच्छा, तशदीद के साथ, तशदीद के साथ पढ़ा है, ठीक है। मिन लदुन लाम के ऊपर तशदीद है, लाम के ऊपर के नहीं है? तशदीद है बेटा जी सर, मीम लाम से मिल जाएगा। मिन लदुन हकीम मिन खबीर, हकीम के नीचे दो जेर है। अच्छा, अब आप अपनी गलतियां पकड़ें। आपने अलिफ के ऊपर आपने कहा था जबर है, जी सर, हाँ वो ये पेश पेश हो है। गया। तो ये ब्यूटी है इस वेबसाइट की। आपने एंजॉय किया इस वेबसाइट को? जी सर बिल्कुल। कैसी जबरदस्त वेबसाइट है कि आप इसका टेक्स्ट जो है ना चेंज कर सकती हैं। और आप, ये एक लफ्ज है ना क्लीन, तो जैसे ही आप क्लीन दबाएंगी तो हर चीज क्लीन हो जाएगी। और बैक टू पवेलियन आप कर लें तो उस पर डिफरेंट है, सिंपल है, फिर उसके बाद प्लेन है, फिर उसके बाद उस्मानी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस्मानी पढ़ा करें और ये अच्छा होता है। अब मैं आखिरी बात करके ये क्लास ख़त्म करता हूँ। और वो बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एराब जो है मैं आज नहीं कर सकता, नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा। मैंने आज हरकत किए हैं। हरकत में आपको समझ में आ गया कि हरकत की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या, ताकि कुरान शरीफ और अरबी ज़बान सही तरह से पढ़ी जा सके। और उसको अगर ज़बर ज़ेर में फ़र्क होता है तो उसमें मीनिंग में फ़र्क हो सकता है ना। ये हो डॉक्टर सकता है। साहब हुमायूं मजीद साहब कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है बड़ी देर से। ओह आई एम सॉरी, बताइए जनाब क्या कह रहे हैं? सर मैंने जो पूछना था वो मैंने पूछा, फिर भी मैं ये जो आपने कहा ना सर, ये जो है नस्ब जो है या फतह हम कैसे कहते हैं या कसरा हम कहते हैं या पेश हम कहते हैं कि इनको हम कहते हैं कि जैसे नस्ब हम कहते हैं या फतह हम कहते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू अलिफ। और पेश जो है इट इज इक्विवेलेंट टू वाव, और जो कसरा जो है इट इज इक्विवेलेंट टू या। तो उससे भी मतलब बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है सर। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने अल्फाज ज़रा मुश्किल इस्तेमाल किए हैं ना, वो आज के लेसन के लिए नहीं है। जैसे नसब या फतहा, आप दरअसल ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, वो यस सर। ये डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट मैं आज जो है वो नहीं कर रहा हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो आप कह रहे हैं ना रफा या नस्ब, ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो यस ये सर। हम आज के जो क्लास का डॉक्यूमेंट, ये वाला मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि हम अपने टाइम पर रहेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन नस्ब, रफा और जर ये कहलाती हैं केसेस नाउन के, ठीक है? वर्ब में भी होते हैं केस, वर्ब में कुछ और कहते हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं वर्ब की। लेकिन ये जो केसेस होते हैं कि 3 केसेस होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में। आज हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हरकत क्या होती हैं। और यस हरकत सर। के लिए मैंने सिर्फ एक चीज, एक डॉक्यूमेंट आपसे बताया है कि ये सब हरकत होती हैं। इनको कहते हैं मार्क्स, फतहा, दम्मा। तो डोंट कंफ्यूज, फतहा अलग चीज होती है, नस्ब अलग चीज होती है, दम्मा यस सर। अलग चीज होती है, रफा अलग चीज होती है। यस सर। इसको अच्छी तरह से आज ज़हन नशीन कर लें। दे आर नॉट द यस। सेम। उसी का फर्क है। ये जो फतह है इसको कहते हैं हरकत, और जो नस्ब है उसे कहते हैं एराब। तो एराब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सर ठीक है? सर यहाँ थैंक यू मैं सर। आपको एक बात और बताऊं, एज ए टीचर जी जी। मैंने
اردو میں اردو دیکھی ہے بچوں کی بکس وغیرہ، تو اس میں آتا تھا کہ اعراب لگائیے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بچے جو تھے وہ اعراب لگاتے تھے، یعنی کہ زبر زیر کوئی پیش لگاتے تھے. مل گیا، ہاں جی زبردست پیش. تو ہمارے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہ جو حرکت ہے اور یہ اعراب ہے یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن جب ہم نے عربی کی تھوڑی سی گرامر شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں، یعنی بالکل بالکل بالکل. ہی مختلف ہے. بیسیکلی میں بہت زیادہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں تبدیلی لائی جائے اور ہمارے نصاب کو انکلوڈنگ قرآن شریف کو سنکرونائز کیا جائے، پوری دنیا میں ایک قرآن شریف رکھا جائے. اور حمید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میں بہت زیادہ اس کا ایکٹیوسٹ ہوں کہ پوری دنیا میں ایک قرآن، ایک مصحف اور ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے اگر ہم اس لینگویج کی بات کر رہے ہیں. جیسے حرکات اور اعراب جو ہے وہ آبویسلی ہم اس کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں یا تو ہم لکھیں اردو کی کتاب میں بچوں کے لیے کہ حرکات لگائیے، وہ بہتر لفظ ہوگا کہ ان کی کتابوں کی تصحیح کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بڑا بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی کو کریکٹ کر سکیں، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو وہ میں اب دخل نہیں دیتا ہوں، اور لوگ غلط پر خوش ہیں لیکن میں غلط پر خوش نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ صحیح چیز سیکھ لیں، ایک دفعہ زندگی میں سیکھ لیں، صحیح سیکھ لیں. اچھا جناب، اب سر بچپن میں جب ہم قرآن سیکھنے جاتے تھے نا تو وہاں پہ جو ہماری ٹیچر تھی نا، وہ جیسے آپ نے وہ بتایا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ از کریکٹ، تو وہ جب ہم اشہد اللہ پڑھتے تھے نا تو وہ ہمیں کریکٹ کرتی تھی کہ نو اٹس اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھیے تو ہمارے ابھی جب ہم یہاں نہیں میجورٹی جو اساتذہ ہیں اور میجورٹی مولویوں کو عربی نہیں آتی. میں آپ جی کو بہت ہی، اٹس اے ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ، ویری بلنٹ اسٹیٹمنٹ، بٹ لیٹ می سے اٹ کہ ان کو عربی لینگویج نہیں آتی ہے، اور جو پڑھائی جاتی ہے اس عربی سے قرآن کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے آپ لوگ، جس طرح سے وہ لوگ پڑھاتے ہیں. تو ہمارے گھر والے ہمیں انہیں کے پاس بھیجتے ہیں نا بیسک آپ سیکھنے بالکل کے درست لیے کہہ جو رہی ہیں غلط ہے. کہ نون نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں پر وہ انسسٹ کریں گی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. تو وہ جی جی اب میں نہیں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں غلط پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن میں غلط نہیں پڑھوں گا، دیٹس اٹ. تو کسی کو زبردستی آپ کریں. اچھا، میں آخری بات، یہ آیت ہے دوسری، یہ ذرا پڑھیے دوسری آیت، کوئی بھی آپ میں سے پڑھ لے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. جزاک اللہ. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیت ہے اللہ تعبدو، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے، اور اگر اس کے اوپر یہاں پر میں نے مارک ختم کر دیے، لیکن چونکہ حمزۃ القطع لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلا والا حمزہ اور دوسرے والے حمزے میں فرق ہے، اور اس میں ایک میں زیر ہے، اس میں زبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں میننگ میں فرق ہے. اگر آپ نے غلطی سے اس کو پڑھ دیا اللہ پہلے والے کو اور دوسرے والے کو اللہ پڑھ دیا، تو کیا وہ درست ہوگا؟ نہیں ہوگا درست، ہے نا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ دو الفاظ ہیں، دو کلمات ہیں، اور اللہ ایک کلمہ ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوائے. اللہ کے بعد ناؤن آتا ہے، اور اللہ کے بعد ورب یہ آتا ہے. نہیں ہے سر، کیا نہیں ہے یہ اصلاح کا مطلب نہیں ہوگا، تو یہ آ گیا. بس میں دو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ایک بات یہ کہ قرآن شریف میں زبر زیر سے فرق پڑتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبر زیر سے میننگ میں فرق نہیں پڑتا، وہ غلط ہے. آپ ان کو سمپل ایک بات کہہ دیں، منوائے نہیں، آپ صرف اپنی بات کہیں کہ زبر زیر سے فرق پڑتا ہے. نمبر 1.
آپ اس کو پڑھ لیں الا تعبدو اور اس کو پڑھ لیں اللہ. تو از اٹ کریکٹ؟ اٹ از انکریکٹ، ایبسلیوٹلی انکریکٹ. ٹھیک ہے نا، پہلی بات. اور اس کے لیے ایک وہ ہمارے حمید شاہ صاحب کو پتا ہے کہ یہ ان کے بعد تعبدو جو آتا ہے اس کے لیے وہ بہت مشکل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یاد ہے حمید شاہ صاحب آپ کو کیا استعمال کرتے ہیں آپ ہیں؟ آئی گیس وہ لیو کر چکے ہیں. نہیں حمید شاہ صاحب آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں ہے، وہ لیو کر چکے ہیں. وہ چلے گئے. اچھا اس کے لیے بہت مشکل لفظ ہوتا ہے، میں لفظ بتا دوں آپ کو، اس کے لیے کہتے ہیں مصدر معول. تو میں کبھی بعد میں بتاؤں گا. دوبارہ. مصدر معول. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا آخری بات کہ یہ جو ہے اس میں فرق کرنا چاہیے کہ اللہ کے بعد جو ہے نا یہ ان ہے اور لا ہے. یہاں لا تعبدو، یہ لا کا مطلب ہے لا ناہیہ، لا تعبدو نہیں عبادت کرو. تو اللہ کے بعد آپ چھوٹا سا ایک رول یاد کر لیں، چھوٹا سا میں چھوٹے چھوٹے رول بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے بعد ہمیشہ ورب آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، ہمیشہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایکسیپشن ہوتی ہیں ہر زبان میں. اللہ کے بعد اور اللہ کے بعد جو ہے ناؤن آتا ہے. ناؤن آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا. آپ دوسری آیت ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. الا رحمتاً. رحمت للعالمین. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ناؤن آ گئے نا. تو اب آپ کو رول ناؤن. پتہ چل گیا کہ اللہ جب بھی آئے گا اس کے بعد ناؤن آتا ہے، اور اللہ جب بھی آتا ہے یہ دراصل ان اور لا کا کمبینیشن ہے. اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا کمبینیشن نہیں ہے، یہ بات یاد کرنی ہے. اور اس پر میں کلاس ختم کرتا ہوں. آئی ایم سوری کہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، 5 منٹ زیادہ لے لیے. جانے سے پہلے ایک چھوٹا سی بات مجھے اور بتائیے گا جی جی. کہ جب چھوٹے بچوں کو بالکل نئے سرے سے قرآن پڑھانا شروع کریں تو وہ قاعدے سے شروع کرتے ہیں. تو یہاں تو مصحف آپ نے تینوں بتا دیے، لیکن وہاں قاعدے میں ہم کون سا قاعدہ جو ہے اسٹارٹ کرنا ہے؟ آپ قاعدہ مکیہ استعمال کریں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ قاعدہ مکیہ استعمال کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ جو قواعد ہیں ان کو لکھا جائے. اور لیکن سم ہاؤ چونکہ وہاں کے لوگوں کو عربی لینگویج نہیں آتی، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پیش وہاں کے علماء ہیں جن کو عربی صحیح نہیں آتی، اور وہ پھر وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے بہت سارے قاعدے ہیں. جیسے ایک قاعدہ یہ ہے قاعدہ نورانیہ جو اکثر ہے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے قاعدہ وہ یہ جو نورانی قاعدہ ہے یہ نارتھ امریکہ میں انگلش میں بھی اویلیبل ہے یہاں کے بچوں کے لیے. مور اور لیس it is correct but it has some fault. قاعدہ نورانیہ کا. پھر اس کے بعد ایک قاعدہ، یہ تو میں نے یہ اردو میں جو پاکستان میں قاعدہ یوز ہوتا ہے جس کے اندر کے آپ اردو میں ہدایات ہیں، اس کے اندر یہ بڑا مشکل طریقے کا قاعدہ ہے. یہ تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے بہترین قاعدہ ہمارے دوست نے لکھا ہے جو 86 پیج کا قاعدہ ہے. یہ پبلش نہیں ہو سکا، اور ہمارے دوست عبد الرحمان صاحب کا بیچارے کا انتقال ہو گیا مدینے میں، اور انہوں نے 1990 میں یہ لکھا تھا یہ قاعدہ. دس از ون آف دا بیسٹ جو ہر اسکول کے نصاب کا، کاش کہ کوئی اس کو پبلش کر سکے
اور इसको तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ब्यूटी, लेकिन जो क्लोज टू दिस कायदा है वो ये वाला कायदा है। इसमें 107 पेजेस हैं और ये जो कायदा है ये मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन ये जो कायदा है ये, चूंकि मैं खुद सिर्फ अरबी की किताबें पढ़ता हूँ या इंग्लिश ट्रांसलेशन, में उर्दू की नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उर्दू की जो लिटरेचर है वो उसमें अगलात काफ़ी होती हैं आई मस्ट से, और दे डू नॉट फॉलो अरबिक स्क्रिप्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो यहाँ पे जीम लिखें तो वो जीम के नीचे यहाँ पे एक जज़म लगाएंगे, जबकि यहाँ पर जीम के नीचे जज़म नहीं होनी चाहिए, या बा के ऊपर जैसे नहीं है, तो एंड सो ऑन। तो अब ये जो कायदा है 107 पेज का, ये बेहतरीन है और ये सारी जो मिसालें हैं कुरान शरीफ से हैं इसके अंदर। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस कायदे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और उर्दू में ट्रांसलेट करके करना चाहिए, और इसके अंदर सारी मिसालें कुरान शरीफ से हैं। तो मैं तो ये वाला जो कायदा है, क्योंकि अगर ये कायदा पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद हमारे बच्चे मुसहफ़ उस्मानी पढ़ सकते हैं, और अगर ये कायदा नहीं पढ़ाया जाएगा तो उनको मुसहफ़ उस्मानी कभी भी नहीं समझ में आएगा। और मुसहफ़ उस्मानी का मतलब ये है कि ये वाला मुसहफ़ की मैं कहाँ बात से कर रहा हूँ। मिलेगा सर? जी, ये मिलेगा कहाँ से सर? मेरे पास से मिलेगा। मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो मैं भेज दूंगा। मैं तो तो चाहता हूँ जुगाड़ कि करना मेरे स्टूडेंट पढ़ें ये सब चीजें और ये नॉलेज हासिल करें, क्योंकि आप लोग हैं जिनसे उम्मीद है कि आप लोग कम से कम लोगों को बताएंगी कि दुनिया में अभी लोग मौजूद हैं। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने अरूबा में बैठा हुआ हूँ, वेनेजुएला के साउथ अमेरिका के पास, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 6 या 7 लोग होते हैं मैक्सिमम। क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग? अलमोरिद वाले क्यों आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं? ताकि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल जाए। जब आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी तो उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों को भी और सबको अच्छी नॉलेज, अच्छी अरबी लैंग्वेज सिखाएंगी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो जो है वो पढ़ेंगी। अगर उनको ये वाला कुरान शरीफ पढ़ाते रहे तो जब भी वो दूसरा कुरान शरीफ खोलेंगे या कोई भी अरबी का लिटरेचर खोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कभी भी जी समझ में सर, नहीं आएगा। ऐसे ही है। जब जाते हैं ना वहाँ हज करने, तो सारे पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो यही वाला कुरान ढूंढ रहे होते हैं कि हम, हालांकि इतने सारे रखे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम वही पढ़ेंगे। तो नहीं, अब उसकी यही वजह उसकी है वजह है ना, पढ़ने उसकी वजह ये है कि दे आर ट्यून टू इट। तो जब आदमी किसी चीज का आदी हो जाता है ना तो वो वही पढ़ता है, और हम अनफॉर्चुनेटली गलतियों के आदी हो चुके हैं और की। हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। हमारे इस ट्रांजैक्शन में फ्रॉम दिस मुसहफ टू दिस मुसहफ कम से कम 10 साल लगेंगे। यानी ग्रेड 1 के बच्चे को आप जब ये वाला कायदा शुरू करेंगी, इस वाले कायदे को, तो ग्रेड 1 का जब बच्चा पहली दफा ये कायदा पढ़ेगा तो उसको ये कायदा याद हो जाएगा। और 10 साल तक बच्चे अगर यही कायदे पढ़ते रहे तो फिर उसके लिए ये जो अल्फाज हैं, जब वो मुसहफ मदीना खोलेगा तो ये कोई नए नहीं होंगे अल्फाज, सही बच्चों को बात है। पढ़ाना पड़ेगा ना। आप हमें बच्चों को जब हम ट्रेन नहीं करेंगे बच्चों को शुरू से, बच्चों को 10 साल तक तो हम पाकिस्तानी कायदा पढ़ाते रहे और 11वें साल में कह रहे हैं कि मुसहफ मदीना पढ़ लो, कैसे पढ़ लेगा बच्चा? कोई भी नहीं पढ़ सकता, नोबडी। चले, अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान शरीफ पढ़ने और करें। अगर कोई भी चीज चाहिए, अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज सेंड मी अ तो टेक्स्ट। सर प्रोवाइड एज दिस कायदा मक्की है जो आपने कहा ना, इसको आप PDF में हमें आप सेंड कीजिए। मैं सेंड कर दूंगा। यस सर। क्या फिर चीज हम चाहिए इसको आपको? निकाल लेंगे ना सर, यही कायदा आप हमें क्या सेंड चीज चाहिए करेंगे। आपको? कौन सा कायदा चाहिए? ये ना वाला मक्की चाहिए? है जो आप करते हैं। हैं? यस सर, कायदा यस सर, मक्की। यही नहीं, कायदा मक्की। मेरे पास कोई 15 किस्म के नूरानी कायदे हैं, मैंने इस पर काम किया है। लेकिन हमारे काम को
پاکستان میں اور انڈیا میں کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل آپ لوگوں نو کو بڈی ول بھی ایکسیپٹ, کیونکہ وہ ان لوگوں کو, علماء کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, وہ پڑھا نہیں سکتے, وہ مسجدوں میں غلط پڑھا کر بچوں کو غلط پڑھایا ہوا ہے. اب وہ صحیح کیسے کریں؟ سر لیکن یہی ایک وقت آئے گا, میں بتا دوں آپ کو, کہ لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ, اور ساری دنیا میں ایک قرآن شریف ہوگا اور سمجھ کے سب لوگ پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ, میں آپ کو بھیج دوں گا, یہ ساری چیزیں گروپ میں ڈال دوں گا اور آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن یس سر, سر یہی موقع ہے ہمیں سیکھنے کا. جی جی. چلیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.